بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم سٹارٹ کریں گے جنرل سرجری کے ٹاپکس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر سسٹمک سرجری الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو سرجری از اے ویری ویری میجر سبجیکٹ. اناٹمی کو آپ لوگوں نے ریوائز کرتے رہنا ہے اور اناٹمی کے جو نالج ہے اس سے آپ لوگوں کو سرجری میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو جنرل سرجری میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از کالڈ شاک. ٹھیک ہے جی. کہ سرجری میں شاک از ویری ویری امپورٹنٹ ون. ایگزامس کے لحاظ سے بھی اور پریکٹیکلی بھی سرجری کے اندر شاک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنا ہمیں آنا چاہیے. تو لکھیں کہ واٹ از مینٹ بائی شاک. ٹھیک ہے جی. شاک کے بارے میں ڈسکس کریں گے. شاک جب بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں دیٹ از کالڈ اسٹیٹ آف سسٹمک ہائپو پرفیوژن. ٹھیک ہے جی. تو لکھیں اسٹیٹ آف systemic hypoperfusion to organ, multiple organ which result organs dysfunction. That is called a shock. تو شاک کی جب بھی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے تو ہمیں اس کو ایسے ہی ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ اٹ از اے اسٹیٹ آف سسٹمک ہائپو پرفیوژن. کہ ملٹیپل آرگن کو جب بلڈ کی سپلائی اتنی کم ہو جائے کہ جس کے آرگن کی ڈیمانڈ کو ہم پوری نہ کر سکے اور پھر آرگن کی ڈیمیج چانسز زیادہ ہوگی. دیٹ از کالڈ شاک. آپ لوگوں سے کبھی کبھار یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسکیمیا اینڈ شاک. کیونکہ اسکیمیا کے اندر بھی جو بلڈ سپلائی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اور جو شاک ہے اٹ از آلسو ہائپو پرفیوژن. اس کے اندر بھی بلڈ سپلائی کیا ہے, کم ہے. اور یہ کوشچن ویلڈ ہے کہ آیا اسکیمیا اور شاک ایک چیز ہے کہ ڈفرنٹ ہے؟ دے آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اسکیمیا جو ہوتا ہے ایک اسپیسیفک آرگن کے لیے یوز ہوتا ہے. کہ اگر مثال کے طور پہ کورونری آرٹری ہیں ان میں بلڈ سپلائی کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مایوکارڈیل اسکیمیا ہے. تو جو اسکیمیا ہے اٹ از دا ٹرم یوز فار اسپیسیفک آرگن. کسی ایک آرگن میں اگر بلڈ کی سپلائی کیا ہو جائے, کم, تو اس کو اسکیمیا کہتے ہیں. بٹ اگر ملٹیپل آرگن میں ایٹ اے ٹائم بلڈ کی سپلائی کم ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, شاک کہتے ہیں. اس لیے جو ورڈ ہے اٹ از ویری میننگ فل, سسٹمک ہائپو پرفیوژن ہے. تو اس میں ایک آرگن نہیں, ملٹیپل سسٹم جو ہے ایٹ اے ٹائم سفرنگ فرام ہائپو پرفیوژن. تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاک ہے اٹ از اے ٹائپ آف گلوبل اسکیمیا. یہ کیا ہے, گلوبل اسکیمیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسکیمیا اور شاک میں جو میجر ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکیمیا ہے وہ ڈیکریز بلڈ سپلائی ٹو پرٹیکولر آرگن ہوتا ہے, بٹ شاک کے اندر ملٹیپل آرگن کو بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹ از کالڈ شاک. اس میں لکھ رہے ہیں کہ ان شاک the blood pressure is usually decrease. کیا ہوتی ہے, usually decrease. ایکچولی ہماری جو بلڈ پریشر ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جو ہارٹ ہے وہ اتنا پمپ نہیں کر سکتا کہ وہ پورے سسٹم کی جو سپلائی ہے کہ پوری کر سکے. اس وجہ سے شاک کو ہم کیا کہتے ہیں, سرکولیٹری فیلئر. کیا کہتے ہیں, سرکولیٹری فیلئر. کہ پورے سرکولیشن کے اندر ایک فیلئر آتی ہے جس میں ایک آرگن کو نہیں بلکہ ملٹیپل آرگن کو بلڈ کی سپلائی کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو شاک از اے ٹائپ آف سرکولیٹری فیلئر وچ از ویری امپورٹنٹ ون. دیکھیں آپ لوگ کو میں ایک بیسک کنسپٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا آگے لے کے جاؤں گا. آپ لوگوں کو پتا ہے اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ بلڈ پریشر, تو بلڈ پریشر is equal to two things. Blood pressure is equal to cardiac output multiplied by total peripheral resistance. ٹھیک ہے جی. تو جب بھی ہم بلڈ پریشر کی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اٹ از دا equal to cardiac output and to total peripheral resistance. ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں, بلڈ پریشر. اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے, بلڈ پریشر مثال کے طور پہ اس میں کارڈیک آؤٹ پٹ از ون آف دا گڈ پیرامیٹر. ابھی جو کارڈیک آؤٹ پٹ ہے اس میں آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ کارڈیک آؤٹ پٹ از نتھنگ پمپ آف دا بلڈ.
कि जो ब्लड की पंपिंग होती है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, बट अगर इसको हम ले पर मिनट में, 1 मिनट में कितना, तो उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सो इट इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड ऑफ कार्डियक आउटपुट। जितना कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा उतना ब्लड प्रेशर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। और कार्डियक आउटपुट आप लोगों ने याद रखना है कि 1 मिनट में जितना ब्लड हार्ट बाहर निकालती है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जो एक हेल्दी पर्सन में अबाउट 5 लीटर होता है। कितना होता है, 5 लीटर होता है। अब मुझे ये बताएं, आप लोग को ये भी तो पता होगा कि जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट दैट इज स्टिल इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, ठीक है जी। कार्डियक आउटपुट फिर किसके बराबर है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल इन 1 बीट, ये बीट के अंदर होता है, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी, ये आप लोग को एमसीक्यूज में आते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर हम यहाँ पे देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, सारे बोले स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज द ब्लड पंप पर बीट, इसमें मिनट की बात नहीं है, ये हम किसकी बात करते हैं, पर बीट की बात करते हैं, तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ हम हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, ठीक है जी। देख, एक हेल्दी पर्सन में जो एवरेज बीट होती है वो 72 है। कितना है, 72। मैं आप लोग को जस्ट समझाने के लिए 72 बीट होती है, समझ रहे। और जो हार्ट रेट है मिसाल के तौर पे, वो भी एक पेशेंट में कितना होता है, 72, जो हमारा हार्ट रेट है। वैसे तो 60 से लेके, या मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को चले इसका एक इक्वेशन बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो स्ट्रोक वॉल्यूम है जिस इज इक्वल टू द ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल इन 1 बीट। अब देखें, ब्लड जब हार्ट को मिलती है, क्योंकि शॉक के अंदर जो हार्ट है इसको समझना इंतहाई लाजमी है। एक्चुअली आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, तो उन सब को जब हम डिस्कस करेंगे उसके लिए जो मेन कंसेप्ट है ये आना चाहिए, ठीक है जी। एक्चुअली वी नो कि व्हेन द ब्लड कम इनटू द हार्ट इज रिलैक्स व्हेन द हार्ट इज फिल फ्रॉम द ब्लड। तो हार्ट के अंदर जब ब्लड की फिलिंग होती है तो हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब वो ज्यादा ब्लड लेता है और मैक्सिमम ब्लड आता है, देन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू इजेक्ट द ब्लड। ऐसा है कि नहीं, जो रिलैक्स है, रिलैक्सेशन है हार्ट के अंदर, वो डायस्टोलिक फेज है, और जो कंट्रैक्शन है उसको हम सिस्टोलिक फेज कहते हैं। इस पे सब क्लियर है कि नहीं। अब और से सुने, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो उसमें ब्लड आएगी कि ब्लड उससे जाएगी, आएगी। तो मतलब वेंट्रिकल बिकम फेल, वो फेलिंग हो रही है। और जब एक अमाउंट में ब्लड आ जाती है और जिस पे वेंट्रिकल अपना क्या खत्म करेगी, रिलैक्सेशन फेज, तो डायस्टोलिक फेज खत्म होगी कि सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो वो अमाउंट ऑफ द ब्लड जिस पे वेंट्रिकल इनफ फेल हो जाते हैं और जिस पर वो अपनी रिलैक्सेशन खत्म करेगी, वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और से सुने, अब और से सुने, मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड एट विच द वेंट्रिकल फिनिश देयर डायस्टोल, दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक। और एक हेल्दी पर्सन में तकरीबन वेंट्रिकल में जब 140 ml तक ब्लड आता है तो मजीद इसको हम स्ट्रेचो नहीं करेंगे, अदरवाइज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है जी। फिर वेंट्रिकल जब मैक्सिमम क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, तो उसमें से कुछ ब्लड अयोटा में जाएगी और कुछ ब्लड स्टिल वेंट्रिकल में रहेगी। तो फिर वो ब्लड जो मैक्सिमम कंट्रैक्शन के बाद भी वेंट्रिकल में रहती है उसका नाम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। क्या होता है, एंड सिस्टोलिक। अब और से सुने, ये जो एंड सिस्टोलिक है वो इससे कम होगा, क्योंकि इस पे तो वेंट्रिकल ने क्या किया है, कंट्रैक्ट किया है, तो कुछ ब्लड तो निकली है, तकरीबन 70 ml ब्लड निकलता है और कितना रह जाता है, 70 ml रह जाता है। तो अगर हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से किसको माइनस करें, एंड सिस्टोलिक से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई कहे कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और आप लोगों को पता है 140 से हमने 70 माइनस करना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आएगा, दैट इज 70। दैट इज वेरी इजी। तो 70 ml इज द स्ट्रोक। इसका मतलब जो 70 ml ब्लड है ये हार्ट एक बीट में निकालती है। कितने वक्त में, एक बीट में निकालती है। तो मुझे आप लोग ये बताएं, गौर से सुने शाबाश, 70 ml ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है कि नहीं, क्योंकि एंड डायस्टोलिक से हमने एंड सिस्टोलिक को माइनस किया, तो 140 से 70 माइनस करके क्या आएगा, 70। और हार्ट रेट तकरीबन 72 बीट पर मिनट होता है कि नहीं,
तो आप लोग मुझे ये बताएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मेरे ख्याल में तकरीबन 4900 ml आएगा कि नहीं, ml पर मिनट होगा। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करें तो किस पे डिवाइड करें, 1000, तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये भी खत्म हो जाएगा। तो 4.9, जो 4.9 लीटर पर मिनट है, तो 4.9 ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 5 लीटर है कि नहीं, एंड दैट इज व्हाट द कार्डियक आउटपुट इज ऑल अबाउट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो तो 70 ml है, कितना 70, बट स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ अगर हम किसको मल्टीप्लाई करें, हार्ट रेट जो हमने 72 लिया है, तो इससे जो बिग वैल्यू आएगी दोनों से, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट, दैट इज इक्वल टू 4.59, दैट इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 5 लीटर। ठीक है जी, आप लोगों ने प्रूव करना है। तो जब भी एक पेशेंट है, मिसाल के तौर पे उसका, चलो मैं 2 सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, एक मरीज है उसको जनाब ट्रोमा हो जाए और उससे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग की वजह से इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड क्या होगी, कम होगी। जब इंटरनल वॉल्यूम जो है वो कम होगी तो ब्लड टू द हार्ट आएगी कम, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगी। स्ट्रोक वॉल्यूम कम तो कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, बीपी विल बी डिक्रीज। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द शॉक पेशेंट हैव डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे एक और पेशेंट है, उसको क्रोनिक डायरिया है, तो डायरिया के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं होती, बट देयर इज वॉल्यूम लॉस, फ्लूइड लॉस होता है, और जब फ्लूइड लॉस होता है तो फिर भी इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, एंडास्टोलिक वॉल्यूम कम होगी, तो फिर यही बात है, बीपी कम होगी। ये जो कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसका मतलब ये है कि हाउ शॉक पेशेंट डेवलप हाइपोटेंशन, इसको बीपी क्यों कम होती है, तो ये सारा पाथवे आप लोग को आना चाहिए। ठीक है जी, तो मेजॉरिटी शॉक पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनका जो बीपी है वो क्या होती है, वो कम होती है। अब 2 बातें और से सुने, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके नोट में, और इस नोट से आप लोग को एक एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएगा। 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको शॉक है, मतलब जो टिश्यू परफ्यूजन है उसका बहुत ज्यादा कम है, और मल्टीपल आर्गन को ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत कम मिल रही है, तो पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ शॉक। अब आप इस पेशेंट की मिसाल पेरिफेरी चेक करते हैं, मतलब हाथ और पैर पे टच करते हैं, तो 2 चीजें हैं, या तो हमें कूल एक्सट्रीमिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, कूल एक्सट्रीमिटी। ठीक है जी, कि पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल बर्फ की तरह जो है वो कूल होता है। ठीक है जी, या हमें कभी कभार यहाँ पे लेके हॉट एक्सट्रीमिटी, मीन कि हमें जो पेरिफेरी है वो हमें हॉट फील होगी। तो शॉक के अंदर द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पेशेंट में बी कूल और इट में बी हॉट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हम प्रूफ करेंगे कि ये क्यों होता है। अब इन दोनों के अंदर टिश्यू को जो परफ्यूजन है वो क्या मिल रही है, कम मिल रही है। अब और से सुने, अगर एग्जाम के अंदर आप लोग बैठे हैं और उसमें शॉक की हिस्ट्री आए, लेकिन वो आखिर में ये बताए कि पेशेंट की जो पेरिफेरी है वो क्या है, वो कूल है, तो इतना समझ जाना चाहिए कि मे बी द पेशेंट हैज हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में नाम से पता चलता है जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। व्हेन वॉल्यूम इज लो द पेरिफेरी विल बी कूल, समझ रहे कि नहीं, पेरिफेरी जो है वो कूल हो जाती है। दूसरी बात यह है, कभी कभार फॉर एग्जांपल अब हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर यहाँ पे लिखे एब्सोल्यूट फ्लूइड लॉस, इसमें जो फ्लूइड है वो बॉडी से लॉस हो चुके हैं, एब्सोल्यूट फ्लूइड लॉस। अभी जो फ्लूइड है, हाँ जी, ये डायरिया की शक्ल में हो सकती है कि नहीं, ये जो फ्लूइड है ये सुवियर वोमिटिंग की शक्ल में हो सकती है कि नहीं, और ये जो फ्लूइड है ये ब्लड की शक्ल में भी हो सकती है। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक डायरिया की वजह से हो जाए उसको नॉन हीमोरेजिक हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं, बट अगर किसी को ट्रॉमा में ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाए तो उसको हीमोरेजिक टाइप कहते हैं। तो जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इट मे बी नॉन हीमोरेजिक और इट मे बी हीमोरेजिक टाइप, लेकिन इसमें शर्त यह है कि फ्लूइड लॉस विल बी देयर, बॉडी से फ्लूइड बाहर जाएगी, चाहे वो डायरिया की शक्ल में हो, वोमिटिंग की शक्ल में हो, डिक्रीज इनटेक की शक्ल में हो, या ब्लीडिंग की शक्ल में हो। ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट फ्लूइड लॉस होता है। और से सुने, एक और पेशेंट आता है शॉक के अंदर, उसकी भी एक्सट्रीमिटी क्या होती है, कूल होती है। सो इट मे बी, अगर हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है तो फिर सेकंड मीन इट मे बी कार्डियोजेनिक शॉक। कौन सा होगा, कार्डियोजेनिक शॉक। मैं आप लोग को इसका एक मिसाल देता हूँ, और से सुने। जो कार्डियोजेनिक शॉक है इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो हार्ट के अंदर है। किसके अंदर है, हार्ट के अंदर। चले जी आप लोग मुझे ये बताएं, एक पेशेंट है उसको हार्ट अटैक हो जाए, सीवियर
मतलब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है और मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाए तो एमआई के अंदर जो मायोकार्डियल सेल है उसकी डेथ होगी कि नहीं। सो द हार्ट मसल बिकम वीक और स्ट्रांग, वीक, वो इतने पंप नहीं करेंगे कि वो बॉडी को ब्लड की सप्लाई पूरी कर सके। तो एमआई की वजह से शॉक अगर होता है तो दैट विल बी कार्डियोजेनिक शॉक है। कभी कभार आप लोगों को पता होगा कि हार्ट के बाहर जो फ्लूइड होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड, एकदम से वो बढ़ जाती है और वो हार्ट को बाहर से क्या करती है, कंप्रेस, तो वो हार्ट को रिलैक्स होने नहीं देती। जब उसकी रिलैक्सेशन नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी, तो इजेक्शन भी कम होगी, स्पेशली कार्डिक टेम्पोनाट। किस पेशेंट के अंदर, कार्डिक टेम्पोनाट। कभी कभार पेरिकार्डियल इफ्यूजन, किसके अंदर, पेरिकार्डियल। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डिक टेम्पोनाट या मायोकार्डियल इन्फाक्शन या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इन सब के अंदर प्रॉब्लम कहां पे है, हार्ट के अंदर है या हार्ट से बाहर केविटी में है। जो प्रॉब्लम हार्ट को करा रही है और इजेक्शन क्या हो रही है, कम, तो ऐसे शॉक में हम क्या नाम देंगे, कार्डियोजेनिक शॉक। तो जो कार्डियोजेनिक शॉक है इसमें पेरिफेरी को ब्लड की जो रीच है, परफ्यूजन है, कम होगी कि ज्यादा, कम होगी, स्टिल एक्सट्रीमिटी विल बी कूल, इसके अंदर भी एक्सट्रीमिटी कूल होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखे, शाबाश, यहाँ पे बॉडी से फ्लूइड लॉस है या फ्लूइड पहुंच नहीं रही, हाँ जी, बॉडी से फ्लूइड लॉस नहीं है, फ्लूइड इज देयर बट जो पंपिंग ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा, तो उसकी पहुंच नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं रिलेटिव लॉस। क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉस। ये तो एब्सोल्यूट लॉस था ना पहला, एब्सोल्यूट मीन के बॉडी से फ्लूइड ही गई है, वो एब्सोल्यूट लॉस है। अब यहाँ पे पेरिफेरी को नहीं मिल रही रिलेटिवली बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्लूइड लॉस। दोनों में समझ गए फर्क के नहीं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्लूइड लॉस। मैं सर्जरी को अच्छा पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे आप लोगों का तकरीबन NRE 1 का 200 में से 50 से 60 MCQs कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो इसको गौर से सुने और एक एक चीज सीखें। अब एक पेशेंट है, पेशेंट हैज हाइपोटेंशन, उसकी पल्स इज वीक है और उसको टैकेकार्डिया है, क्योंकि जब बॉडी में फ्लूइड कम होती है तो कैटाकोलामीन रिलीज होना शुरू हो जाती है। बॉडी में फ्लूइड कम का मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन विल बी देयर। उस सिंपैथेटिक सिस्टम में एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन लेवल इज हाई और एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर टू इंक्रीज द हार्ट रेट। द फर्स्ट साइन ऑफ शॉक दैट इज टैकेकार्डिया। वो क्या है, टैकेकार्डिया है। हार्ट रेट इसलिए बढ़ता है कि हार्ट को मजबूर करे कि किसी न किसी तरीके वो पंपिंग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो अगर एक पेशेंट है उसकी पल्स वीक है, उसको हाइपोटेंशन है, उसको मेंटल कंफ्यूजन है, डिजीनेस है और उसको टैकेकार्डिया है, तो अब समझ आए मे बी द पेशेंट इज इन स्टेट ऑफ शॉक। फिर आप उसकी पेरिफेरी चेक करते हैं और वो बिल्कुल कूल है, क्या है, कूल है। लेकिन एग्जामिनर ने बताया कि ये प्रॉब्लम मरीज को तब हुआ था जब उसको आज जो है ना चेस्ट पेन हुआ रेडिएट टुवर्ड द लेफ्ट साइड और पेशेंट की कार्डियक मार्कर भी रेस्ट है। तो फिर हम हाइपोवोलेमिक पे जाएंगे कि कार्डियोजेनिक, कार्डियोजेनिक। वो आपको एमआई की हिस्ट्री के ऊपर कार्डियोजेनिक शॉक पूछ रहे। कभी कभार वो ये कहेंगे कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम तब हुई थी जब वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगा और उसका लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर हुआ है एंड देयर इज 1 लीटर ब्लड लॉस। 1 लीटर ब्लड लॉस का मतलब होता है अबाउट 20% ऑफ द ब्लड, और 20% ब्लड जो है 1 लीटर लॉस इज इनफ टू डेवलप हाइपोवोलेमिक शॉक। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोल्ड एक्सट्रीमिटी के ऊपर अगर वो हार्ट की प्रॉब्लम बताएगी तो कार्डियोजेनिक शॉक, अगर वो कोई फ्लूइड लॉस की हिस्ट्री बताएगी हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है जी। लेकिन कूल एक्सट्रीमिटी आज के बाद शॉक में आना सिर्फ 2 कंडीशन है, नंबर 1 इज हाइपोवोलेमिक, नंबर 2 इज कार्डियोजेनिक। तो कूल एक्सट्रीमिटी पे अगर सवाल आता है तो NRE 1 में सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे कि 4 होंगे। तो उसके बाद अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, वो तो आ ही नहीं सकते। इसलिए एक पॉइंट को देखकर दोनों को साइड पे करना। फिर इन दोनों में सवाल के अंदर जवाब है, फिर वो थोड़ा सा पढ़े कि पेशेंट को MI हुआ है, पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनाड है या पेशेंट को डायरिया है, वोमिटिंग है, उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट हाइपोवोलेमिक फ्रॉम कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है जी। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इट विल मेक इट इजी फॉर यू गाइस। फिर इसके बाद कुछ शॉक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्सट्रीमिटी पे हाथ रखते हैं तो वो हार्ट होते हैं, मतलब वो गर्म होते हैं। तो मतलब उन कंडीशन के नाम लेके नंबर 1 सेप्टिक शॉक। कौन सा शॉक? सेप्टिक शॉक। भाई सेप्टिक शॉक के अंदर सेप्सिस से निकला है ना, और सेप्सिस के अंदर इन्फेक्शन होती है कि नहीं? तो इस शॉक के अंदर हाइपोपरफ्यूजन होगी, देयर विल बी हॉट एक्सट्रीमिटी बट पेशेंट विल हैव हाई ग्रेड फीवर। इसमें क्या होती है? हाई ग्रेड फीवर, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से 90% सेप्टिक शॉक के चांसेस ज्यादा होती है। और ये मैं प्रूफ करूंगा कि इसमें एक्सट्रीमिटी क्यों हार्ट होती है।
پہلے ہم روڈ میپ بناتے ہیں کہ ہمیں جب آگے پڑھنا ہو تو ہمیں یہ چیزیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور شاک بھی ہے جس میں بھی مریض کو لایا جاتا ہے تو اس کی ایکسٹریمٹی کیا ہوتی ہے؟ ہارٹ ہوتی ہے. انافائلیکٹک شاک. کون سا شاک؟ انافائلیکٹک شاک. تو اس کے بعد لکھے سیپٹک شاک کے بعد انافائلیکٹک شاک وچ از ویری ویری امپورٹنٹ ون. انافائلیکٹک شاک. یہ جو انافائلیکٹک کا ورڈ ہے اٹ از کم فرام دی انافائلیکسس. Anaphylaxis is a severe form of type 1 hypersensitivity reaction. ایکچولی جو الرجک ریئیکشن ہوتی ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے, ٹائپ 1 سے لے کے ٹائپ 4. اس میں جو ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہے اٹ از IgE میڈیٹڈ. یہ کس اینٹی باڈی کی وجہ سے؟ IgE which release lot of histamine, اور histamine can cause vasodilation. یہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو الرجی کی وجہ سے شاک ہوتا ہے اور اتنا سوئر کنڈیشن میں آتا ہے کہ اس کی پلسز ویک ہے بٹ پیریفری ہارٹ ہے, تھنک اباؤٹ انافائلیکٹک شاک. اٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ اس میں ایک MCQs آتا ہے بہت کامنلی کہ انافائلیکٹک شاک, یہ میں نے اپنے وقت میں PMDC میں بھی فیس کیا ہے, یہ میں نے FCPS میں بھی فیس کیا, اور یہ میں نے MRCP میں بھی فیس کیا ہے. اور اس کا ایک کلو آتا ہے بہت کامن. ایک پیشنٹ ہے اس نے پینیسلین انجیکشن لگایا. کیا لگایا؟ پینیسلین فار دا ٹریٹمنٹ آف فیرنجائٹس. اس کو سور تھروٹ تھا اور اس نے پینیسلین انجیکشن لگایا. اینڈ پینیسلین از دا کامن اینٹی بایوٹک which can cause hypersensitivity reaction. پینیسلین لگانے کے بعد مریض کو آرٹیکیریا ہو گیا, ریڈنس ہو گئی, اس کو ایڈیما ہو گیا اور اس کو برونکو کنسٹرکشن ہو گئی. جو ہسٹامین ہے یہ ویزو ڈائلیٹر ہے بٹ برونکو کنسٹرکٹر ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو انافائلیکٹک شاک کے اندر ویزو ڈائلیشن کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے؟ برونکو کنسٹرکشن. تو ایگزامنر نے لکھا تھا which of the following is the drug of the choice. تو پہلا آپشن اس نے لکھا تھا سلبیوٹامول. کیا لکھا تھا؟ سلبیوٹامول. what is سلبیوٹامول؟ it is a bronchodilator. تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آسما کا مریض انہیلر لیتا ہے وہ تو برونکوڈائلیٹر ہے, بٹ اس کا آنسر سلبیوٹامول نہیں ہوتا. ہمیں ایسا ڈرگ دینا ہوتا ہے کہ برونکو ڈائلیشن بھی کرے بٹ ویزو کنسٹرکشن بھی کرے, تو وہ ایپینیفرین ہے. کیا ہے؟ ایپینیفرین ہے, جس کو ہم ایڈرینلین کہتے ہیں یا ایپینیفرین کہتے ہیں. تو لوگ تو بس سلبیوٹامول پہلا دیکھ کر کہتے ہیں یہ برونکو ڈائلیٹر ہے. وینٹولین کے نام پہ جو آتی ہے تو لوگ اسی کو ٹیک کرتے ہیں, اور جو ایپینیفرین ہے وہ D نمبر آپشن ہوتا ہے. ادھر تک لوگ جاتے نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں بس آنسر مل گیا, نیچے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سوال یہ ہے اس لیے اسٹیٹمنٹ ریڈ کرنا, آپشن ریڈ کرنا, دیٹ ول بی پرووائڈ لاٹ آف کلو ان دا ایگزام. تو آپ لوگ کو جب بھی ایگزام میں انافائلیکٹک شاک کی ذکر آ جائے تو ہمیں برونکو کنسٹرکشن کو بھی کم کرنا ہے اور ویزو ڈائلیشن کو بھی کم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ویری امپورٹنٹ. اور اس شاک کے اندر بھی جتنے بھی مریض آتے ہیں ان میں ہارٹ ایکسٹریمٹی ہوتی ہے. بعض پیشنٹ آتے ہیں ان کو ایک اور شاک ہوتا ہے, اس میں بھی جب ہم پیریفری کو چیک کرتے ہیں تو مطلب اس کو کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ پیریفری, ہارٹ ایکسٹریمٹی. بٹ پیشنٹ لایا ہوتا ہے آفٹر دی اسپائنل کارڈ انجری. کس کے بعد؟ اسپائنل کارڈ انجری. تو اگر کوئی بیک انجری ہے, سروائکل انجری ہے, اور اس کے بعد پیشنٹ کو شاک ہوا ہے لیکن اس شاک کے اندر اس کی ایکسٹریمٹی ہارڈ ہے, تو لیکن نیوروجینک شاک. وہ کیا ہوتا ہے؟ نیوروجینک شاک. دیکھیں شاک از ویری ایزی, یو پیپل مسٹ نو دا روڈ میپ آف دا شاک. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے جب بھی کوشچن کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ٹائپ کیسے کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے. تو اس شاک کا نام کیا ہے؟ دیٹ از نیوروجینک شاک. ٹھیک ہے جی, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ ایز ویل. اس میں نروس ٹیشو ڈیمیج ہوتی ہے, اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے, بیک انجری ہوتی ہے, ان سب کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ہارٹ ایکسٹریمٹیز ہوتی ہے. اور ابھی میں نے یہ کتنے ٹائپس پڑھے ہیں جس میں ہارٹ ایکسٹریمٹی ہے؟ ان کو ایز اے گروپ کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو شاکس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹریبیوٹیو شاک. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں نے ایگزام میں یاد رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل وچ آف دا فالوئنگ شاکس آر ڈسٹریبیوٹیو. تو ڈسٹریبیوٹیو شاکس کے اندر سیپٹک شاک, انافائلیکٹک شاک اینڈ نیوروجینک شاک. ٹھیک ہے جی. ان تینوں شاکس کو کلیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹریبیوٹیو شاکس کہتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سو آل آف دا فالوئنگ آر ڈسٹریبیوٹیو ایکسپٹ. تو یہ تین ٹھیک ہوں گے. ہائپوولیمک کارڈیوجینک از ناٹ ڈسٹریبیوٹیو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم ڈسکس کریں گے, یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پھر یہاں تک, ان پانچوں کو ڈسکس کرنا, شاک کی مینجمنٹ, اور ہم سارا ڈسکس کریں گے. یہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ تو آج کے بعد شاک میں دو شاکس ایسے ہیں جس میں ایکسٹریمٹی کول ہوتی ہے, ون از کارڈیوجینک, ون از ہائپوولیمک. ریسٹ آف دا شاک ایکسٹریمٹی ول بی ہارٹ. ٹھیک ہے جی, امپورٹنٹ. اب ہیڈنگ دے دے ہائپوولیمک شاک. ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ہائپوولیمک شاک اور اس کی جناب کازز کیا ہے. تو نمبر 1 لکھے ہائپوولیمک شاک. ہائپوولیمک
वोलेमिक शॉक, ठीक है जी। इसमें लिखें टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन, which is due to फ्लूइड लॉस। किस वजह से होती है? फ्लूइड लॉस की वजह से। इसमें टोटल फ्लूइड लॉस भी हो सकती है और इसमें रिलेटिव फ्लूइड लॉस भी हो सकती है, ठीक है जी। तो इसमें जो हाइपोवोलेमिक है इसमें टोटल फ्लूइड लॉस होती है, एब्सोल्यूट फ्लूइड लॉस इसके अंदर होती है, चाहे वो फ्लूइड डायरिया की शक्ल में हो, इवन ब्लीड की शक्ल में हो। तो फ्लूइड जो है ये आम बॉडी फ्लूइड भी हो सकती है और ये ब्लड भी हो सकता है, उस केस के ऊपर डिपेंड करते हुए इसके दो टाइप्स है। तो लेकिन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। मिसाल के तौर पे अगर इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, बताए, वन इज हीमोरेजिक, अनदर इज नॉन हीमोरेजिक। वेरी गुड, ठीक है। तो एक साइड पे लेके दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड hemorrhagic and non-hemorrhagic, that is called non-hemorrhagic, ठीक है जी। ये दो टाइप्स है इसके। अब जो हीमोरेजिक है इसमें लेके इट रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। ये किस वजह से होता है? ब्लड, चाहे वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग है, लेकिन वेसल से बाहर जा रही है ब्लड तो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। इसमें लेके इट इज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ, हाँ जी, ब्लड लॉस। किस वजह से होता है? ब्लड लॉस, इसलिए तो हीमोरेजिक है, ठीक है जी। ब्लड लॉस मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। और इसका जो कॉमन काज है, फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड ट्रोमा, ठीक है जी, ट्रोमा। इवन एब्डोमिनल ट्रोमा हो सकता है या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो सकता है कि नहीं, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। और इतना आप लोग सिर्फ याद करें कि बुक में नहीं है बट ये प्रैक्टिकल पॉइंट है कि अगर बॉडी का 20% ब्लड लॉस हो जाए दैट विल बी इनफ टू डेवलप हाइपोवोलेमिक शॉक। 20% ब्लड इक्वल टू 1 लीटर ऑफ द ब्लड। कितना? 1 लीटर ऑफ द ब्लड। 1 लीटर ब्लड लॉस होने से हाइपोवोलेमिक शॉक या हीमोरेजिक का चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। इसमें लेकिन इट इज ड्यू टू फ्लूइड लॉस। ये किस वजह से होती है? फ्लूइड लॉस। अब जो फ्लूइड लॉस है इसकी जो काजेज है, मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें क्रोनिक डायरिया है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक डायरिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्रोनिक डायरिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेके वोमिटिंग। किस वजह से होती है? वोमिटिंग। अगर सीवियर वोमिटिंग है तो इससे भी फ्लूइड लॉस के चांसेस ज्यादा होती हैं। अब देखिए इन दोनों में फर्क है। अगर वोमिटिंग है और उसकी वजह से जो इंटरनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाए? कम, हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देते हैं। क्या देंगे? नॉर्मल सलाइन। हम टाइप ऑफ फ्लूइड अलग पढ़ेंगे कि हेमासील क्या है, रिंगर लैक्टेट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। 5% डेक्सट्रोज क्या है, क्योंकि बहुत कॉमन है, इमरजेंसी में हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर वोमिटिंग की वजह से बॉडी फ्लूइड क्या हो जाए? कम, तो हम नॉर्मल सलाइन देंगे। बट जो डायरिया है उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी खराब हो जाता है। डायरिया के अंदर फ्लूइड लॉस के साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो जाता है, तो उसमें रिंगर लैक्टेट देते हैं। क्या देंगे? रिंगर लैक्टेट। तो जो डायरिया है इसकी जो ट्रीटमेंट है वो रिंगर लैक्टेट है। क्या है? रिंगर लैक्टेट टू रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। लेकिन जो वोमिटिंग है उसमें हम क्या दे सकते हैं? नॉर्मल सलाइन। इसको हम 0.9% सोल्यूशन भी कहते हैं। नॉर्मल सलाइन को हम 0.9% सोल्यूशन या आइसोटोनिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है सीवियर बर्न। अगर मतलब 3rd डिग्री बर्न हो जाए, कोई बंदा कोई जगह जल जाए तो उससे फ्लूइड लॉस हो सकती है क्या? नहीं। तो सीवियर बर्न के अंदर भी हाइपोवोलेमिक शॉक के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो देखिए सारी की सारी वो कंडीशन है जिसमें ओवरऑल फ्लूइड लॉस होती है। तो अगर ये फ्लूइड लॉस इतनी ज्यादा हो जाए, सीवियर बर्न से मुराद होता है 3rd डिग्री बर्न। कौन सी? 3rd डिग्री बर्न। बर्न को हम अलग डिस्कस करेंगे कि इसकी 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। फिर बर्न की मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व, दैट इज सीवियर बर्न। इसको क्या कहते हैं? सीवियर। जितना डेप्थ ज्यादा होगी उतना फ्लूइड लॉस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब अगर एक पेशेंट है उसको हीमोरेजिक है
یا نان ہیموریجک ہے، لیکن دونوں کی وجہ سے انٹرنل والیوم آف دا فلوئڈ کیا ہو جاتی ہے، کم. تو اگر اس کو شاک ہاؤ دیٹ پیشنٹ براٹ ٹو دی ایمرجنسی، وہ مریض جناب کیسے آ سکتا ہے. نمبر 1 پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ لوگوں نے NRE 1 میں بیٹھنا ہے، تو اگر ایگزامنر یہ سوال کرے دماغ کھول کے سنیں کہ دا انیشیل سمٹم انیشیل سائن آف شاک نو میٹر وچ ٹائپ آف شاک از دیئر دیٹ ول بی ٹیکیکارڈیا. کیا ہے؟ ٹیکیکارڈیا. کیونکہ جب والیوم کم ہوتی ہے تو ہماری اسٹریسفل سچویشن جو کیٹاکولامین ہے اپینیفرین نارپینیفرین ایک دم بڑھتی ہے اور وہ ہارٹ ریٹ کیا کرتی ہے، انکریز کرتی ہے. تو لے کے ٹیکیکارڈیا. تو ٹیکیکارڈیا از اے کمپنسیٹری رسپانس. یہ کیا ہے؟ کمپنسیٹری رسپانس. اور ٹیکیکارڈیا کے اندر جو ہارٹ ریٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے. انکریز ہارٹ ریٹ مور دین فار ایگزامپل 100 beat per minute, that is called tachycardia. Number 2, the patient will have hypotension. بی پی اگر ہم چیک کرتے ہیں پیشنٹ کی جو بی پی ہے وہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. the patient will have hypotension. یہ مطلب شاک کے سمٹم ہے. پھر بلڈ سپلائی ٹو دا برین کیا ہوگی، کم ہوگی. تو اس میں ڈیزینس ہوگا. کیا ہوگی؟ ڈیزینس. اور سم ٹائم دا پیشنٹ سے دیٹ ایوری تھنگ اسپننگ اراؤنڈ می ورٹیگو. کیا ہوتی ہے؟ ورٹیگو. ہر ایک چیز کا گھومنا اراؤنڈ دا پیشنٹ that is vertigo due to lack of blood supply to the brain. اور سم ٹائم کنفیوژن. کیا ہو جاتی ہے؟ کنفیوژن. اور اگر شاک کی سیویریٹی زیادہ ہے، اتنا فلوئڈ برین کو نہ ملے کہ اس پہ وہ کام کرے، پیشنٹ میں بیکم انکانشیس ایز ویل. کیا ہو سکتا ہے؟ انکانشیس ہو سکتا ہے. تو ایک سمپل ڈیزینس سے لے کے انکانشیسنس تک نیورولوجیکل سمٹم شاک میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوما بھی ہو سکتا ہے، انکانشیسنس، مینٹل کنفیوژن. دیز آر دا سمٹم آف دی برین. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر شاک ہے ہائپوولیمک. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کون سا؟ ہائپوولیمک. تو کڈنی کو بلڈ کیا ملے گی، کم ملے گی. فلوئڈ کم ملے گی. فلٹریشن کیپیبلٹی کیا ہوگی، کم ہوگی. یورین فارمیشن بھی کم. تو لے کے اولیگیوریا. کیا ہوگی؟ اولیگیوریا. ڈیکریز یورینیشن یا ڈیکریز یورین آؤٹ پٹ، دا کنڈیشن از کالڈ اولیگیوریا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیگیوریا. اور سم ٹائم when the urine is not formed at all، اس کو ہم انوریا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے مین ایبسنٹ، انوریا. لیکن میجورٹی لوگوں میں اولیگیوریا ہوتا ہے. اولیگیوریا کا مطلب ڈیکریز یورین آؤٹ پٹ. جو یورین آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. So that is what all about. آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں 3 چیزیں، ٹیکیکارڈیا، ہائپوٹینشن اینڈ اولیگیوریا. These are the 3 strong points where you suspect hypovolemic shock. کیونکہ اولیگیوریا کا مطلب کہ بھائی باڈی فلوئڈ کم ہے تو کڈنی کو بھی کم مل رہی، تو یورین آؤٹ پٹ بھی کیا ہے، وہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک تو ٹیکیکارڈیا، دوسرا آپ لوگوں نے ہائپوٹینشن، اور دیٹ از کالڈ اولیگیوریا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جب ہم سنتے ہیں نا پیشنٹ میں، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ آن پلپیشن. ہم اس کی پلس چیک کریں گے کہ نہیں. تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، جب فلوئڈ کم ہے تو پلس کو جناب جو ریڈیل پلس ہے جب آپ اس کو پلپیٹ کریں گے تو اس میں فلوئڈ کم ملے گی کہ زیادہ؟ کم. تو ویک پلس ہوگا. کیا ہوگا؟ ویک پلس. کیونکہ جو پلسیشن ہے وہ ویک ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ ویک پلس. اور فلوئڈ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں جو فلوئڈ ہے نا یا جو بلڈ ہے اٹ پرووائڈ ہیٹ. جو بلڈ ہے نا یہ گرم ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بلڈ ہیٹ دیتی ہے. اب یہاں پہ بلڈ یا فلوئڈ کم ہے تو جو پیریفری ہے دیٹ ول بی کول، اور ہارٹ دیٹ ول بی کول ایکسٹریمٹی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں دیٹ از کالڈ کول ایکسٹریمٹی. تو مطلب یہ ہے کہ کول ایکسٹریمٹی ہے تو کول ایکسٹریمٹی ول بی دیئر اینڈ دیٹ از ون آف دا موسٹ کامن فائنڈنگ آن پلپیشن اسپیشلی فار دا ہائپوولیمک شاک. کیونکہ جو کول ایکسٹریمٹی ہے وہ ہر ایک میں نہیں ہوتی. پھر ایک اور پوائنٹ ہم کیا کرتے ہیں، مریض کی جو ٹپ آف دا فنگر ہے نا اس کو زور دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر کیپیلری کو بلاک کر رہے، اور جب آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ بھی چیک کریں گے نا تھوڑا سا زور دیں گے تو اس ایریا کے اندر ہم بلڈ سپلائی کم کر رہے ہیں. So this area become what pale. پھر اس کو ایک دم چھوڑے تو دوبارہ ریڈ ہو جاتا ہے کیونکہ جو بلڈ ہے وہ دوبارہ جاتی ہے. اس کو CRT کیپیلری ریفیل ٹائم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیپیلری. اگر فلوئڈ کم ہے تو کیپیلری ریفیل ٹائم میں زیادہ ٹائم لگے گا کہ نہیں؟ دوبارہ کیپیلری کو فل ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا. تو لے کے ریسٹ یا پرولانگ CRT کیپیلری ریفیل ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے یا کیپیلری ریفیل ٹائم، ریفیل ٹائم نارمل ہوگا کہ پرولانگ ہوگا. یہ مور دین 2 سیکنڈ لے گا. کتنا لے گا؟ مور دین 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم لے گا اس جگہ کو دوبارہ ریپیل ہونے میں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ باڈی کے اندر فلوئڈ اسٹیٹس کیا ہے, وہ ڈیکریز ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم ایک اور ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اس کا نام ہے اسکن ٹرگر. اسکن ٹرگر ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بونی پرومیننسی سے مریض کا اسکن پکڑتے ہیں اور ایسے پنچ کرتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسکن دوبارہ کتنی افیکٹو جا رہی ہے. اگر اندر فلوئڈ زیادہ ہے تو اسکن جلدی واپس جائے گی, بٹ اگر اسکن ٹرجریٹی زیادہ ہے, اگر اسکن پنچ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پہ جانے کے لیے زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اس کا مطلب فلوئڈ اسٹیٹس کیا ہے, وہ کم ہے. تو اسکن ٹرجریٹی دیکھتے ہیں, کیپیلری ریفل ٹائم دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ پیشنٹ کی ایکسٹریمیٹیز دیکھتے ہیں. ایکسٹریمیٹیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں کول محسوس ہوتی ہے, اور جو پلس ہے دیٹ ول بی ویک. دیز آر دا مین سمٹمز آف ہائپوولیمک شاک. مریض یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے 24 گھنٹے میں اس نے ایک دفعہ یورین نہیں کی ہے, یا ایک دفعہ یورین کے لیے گیا ہے لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر. So the patient urine output is drastically decreased in case of hypovolemic shock. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے کہ اگر آپ ہائپوولیمک شاک جو ہے نا وہ رولڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہائپوولیمک شاک ہے, تو ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ اپان دی انڈر لائن کاز. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ انڈر لائن کاز. تو یہاں پہ لکھے اٹ ڈیپینڈ آن انڈر لائن کاز. اوکے جی. آپ مجھے یہ بتائے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو ڈائریا ہے تو اس کو ہائپوولیمک شاک ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بٹ ایک پیشنٹ کو لانگ بون فریکچر ہے اس کو بھی ہو سکتی ہے. تو بھائی ڈائریا کو ہم بلڈ تو نہیں دے سکتے نا, بٹ لانگ بون کے فریکچر کے پیشنٹ کو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کریں گے. تو اگر ہیموریجک ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. کیا ہے؟ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے اینڈ مینٹین دی وائٹل سائنز آف دا پیشنٹ. مطلب جو پیشنٹ کی وائٹلس ہے ان کو سائڈ بائی سائڈ دیکھتے ہیں. بٹ اگر ڈائریا ہے تو ہم رنگر لیکٹیٹ دیتے ہیں, اگر وومٹنگ ہے تو نارمل سلائن دیتے ہیں. اور جو برن پیشنٹ ہے اس کی جو وونڈ ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں, اس کو کور کرتے ہیں تاکہ مزید لاس کم ہو جائے, اور اس میں بھی ہم نارمل سلائن دیتے ہیں. کیا دیں گے؟ نارمل سلائن. So this is what all about the hypovolemic shock, and that is the easiest shock to treat in the hospitals. مطلب جتنے بھی شاکس ہے ان سب کے اندر سب سے ایزیسٹ شاک جو ہے جس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہائپوولیمک شاک ہے. اور اس کی جو ریکوری چانسز ہے وہ 99% ہوتی ہے. تو اس میں مریض جو ہے اگر میجر انجری نہیں ہے یا زیادہ بلڈ لاس نہیں ہے تو اس میں پیشنٹ کی جو ریکوری ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اگر ایک پیشنٹ ہے وہ شاک میں لایا گیا ہے اور اس کی لانگ بون کیا ہے؟ فریکچر ہے, تو اگر ایگزام میں آ جائے دا فرسٹ اسٹیپ ان دا مینجمنٹ تو اس کا آنسر ہوگا اسٹاپ دا بلیڈنگ. اس بلیڈنگ کو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسٹاپ کرنا ہے. اگر آپ بلڈ ٹرانسفیوز کریں گے بھی بٹ یو ڈو ناٹ اسٹاپ دیٹ بلڈ, تو اس سے تو جو آپ ٹرانسفیوز کر رہے ہیں وہ دیر ضائع ہو رہا ہے, تو اس سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. سو دا فرسٹ اسٹیپ ان دا مینجمنٹ آف ہیموریجک شاک ٹو اسٹاپ دا بلیڈنگ. پہلے ہم بلیڈنگ کو اسٹاپ کریں گے, اس کے بعد ہم پیشنٹ کو اسٹیبل کریں گے. دین وی کین ارینج دا بلڈ اکارڈنگ ٹو دا گروپ میچنگ, کراس میچنگ, اور بلڈ ٹرانسفیوژن بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ بلڈ کو اسٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹ از وٹ آل اباؤٹ یو پیپل نو فار دا بلیڈنگ. ٹھیک ہے جی. ہیموریجک شاک. میں آپ لوگوں کو ایک اور پوائنٹ یہاں سے بتاتا چلوں کہ ایگزام کے اندر ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے, میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اس کو سنیں, گھر جا کر یاد کریں, لکھنا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے, جسٹ نالج کے لیے بتا رہا ہوں. جو ہیموریجک شاک ہوتا ہے اس کو WHO نے پھر کلاسیفائی کیا ہوتا ہے. کس نے؟ WHO, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اس سے بلڈ لاس ہوتی ہے لیس دین 15% آف دا باڈی. کتنا؟ لیس دین 15%. اس کو ہم کلاس 1 ہیموریجک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلاس 1. اگر ایک پیشنٹ ہے اس سے بلڈ لاس ہوتی ہے 15 to 30% آف دا بلڈ والیوم, تو اس کو کلاس 2 کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلاس 2. اگر ایک پیشنٹ ہے اس سے بلڈ لاس جو ہے ہیموریجک شاک کے اندر 30 سے 40 کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کلاس 3 ہے. اور مور دین 40% کو ہم کلاس 4 کہتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں سے ویسے کوئی پوچھے کہ ہیموریجک شاک ڈیپینڈنگ اپان دی بلڈ لاس اکارڈنگ ٹو WHO ہاؤ مینی کلاسیفیکیشن؟ 4 کلاسیفیکیشن. سارے بولے کلاس 1 میں کتنا بلڈ لاس؟ لیس دین 15%. کلاس 2 میں 15 to 30%. جو کلاس 3 ہے اس میں 30 to 40%. کلاس 4 جو ہے مور دین 40% ہوتا ہے. بس اس طرح یاد رکھیں. جو کلاس 1 ہے اٹ از اے مینیمل ہیموریجک شاک. اس میں پیشنٹ کو جسٹ اسٹیبل کرنا ہوتا ہے, نو ٹریٹمنٹ از ریکوائرڈ. یہ اتنا بلڈ لاس نہیں ہوتا, باڈی تو خود بلڈ بھی بناتی ہے نا, تو یہ بلڈ لاس جو ہے یہ کچھ دنوں میں ریکور ہو جاتا ہے.
बट जो क्लास 2 है जिसमें ब्लड लॉस कितना होता है 15 से 30, वी विल गिव आईवी फ्लूइड, हम क्या देंगे आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत तो नहीं है। जो 30 से 40 है और फिर 40 से ज्यादा है उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब समझ रहे कि नहीं? तो मतलब जो क्लास 3 और क्लास 4 कैटेगरी है हीमोरेजिक शॉक के अंदर, हाँ जी नौमान, उसमें ब्लड क्या करेंगे ट्रांसफ्यूज करेंगे, बट क्लास 1 2 के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं। 2 में आईवी फ्लूइड देते हैं, 1 को सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं। याद रहेगा कि नहीं? दैट इज वन वे हाउ यू कैन क्लासीफाई। और मैंने आप लोगों को यह बताया कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं कि लेस देन 15%, कितना लेस देन 15, मैं रफली बताता हूं और ये करेक्ट है, बेली एंड लव सर्जरी का नाम सुना है कि नहीं? ये उसके अंदर डिटेल भी है, बट आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि उधर जाकर वो पढ़े। मैं आप लोगों को वो सारी चीजें आसान बनाता हूं कि 15% ब्लड लॉस इज इक्वल टू 0.75 लीटर। अगर किसी ने लिखना है कितना 0.75 लीटर, इसका मतलब ये है हाफ लीटर से ज्यादा और 1 लीटर से कम, दैट इज इक्वल टू 15%। जो 30% है कितना 30%, ये 1.2 लीटर है, कितना है 1.5 लीटर है, कितना 1.5, और फिर कितना है 30 से 40 वो 1.5 लीटर है, कितना 1.5। और से सुने, और जो 40 से ज्यादा है वो 2 लीटर से ज्यादा होता है। तो फिर से बता रहा हूं वन टाइम, 15% तक ब्लड लॉस इज इक्वल टू 0.75 लीटर। डन, लिख लिया कि नहीं? फिर 15 से लेके 30 दैट इज 1.5 लीटर, कितना 1.5। फिर 30 से 40 दैट इज 2 लीटर, कितना 2 लीटर। और फिर 40 से ज्यादा मोर देन 2 लीटर होता है, वो 2.5 भी हो सकता है, 3 तक भी हो सकता है। अब समझ गए कि नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ब्लड लॉस, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक पेशेंट है उससे 1.2 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, कितना 1.2, ये किस कैटेगरी में आता है? क्लास 1 में, 3 में, 2 में आता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज आईवी फ्लूइड, क्या देंगे आईवी फ्लूइड। अगर एक पेशेंट है उससे जनाब 2.5 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, किस कैटेगरी में आता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी नीडेड। ठीक है जी। तो इसी तरह क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए कि हम कितने फ्लूइड के ऊपर लॉस हो जाए, तो हमें परसेंटेज कभी वो बताते हैं, कभी लेटर बताते हैं। दैट इज वेरी इजी कि अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है उससे ब्लड लॉस 1.8 लीटर हुआ है, कितना 1.8, तो 1.5 से तो ज्यादा है ना, तो 1.5 और जो 2 के दरमियान है, तो ये क्लास 3 है। तो आईवी फ्लूइड प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आईवी फ्लूइड प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्लास 4 है इसमें एग्रेसिव फ्लूइड देते हैं, मतलब आईवी लार्ज 2 कैनुला लगाते हैं, ज्यादा फ्लूइड देते हैं और इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि जब 2 लीटर से ब्लड ज्यादा लॉस हो जाए तो फिर पेशेंट की डेथ चांसेस भी ज्यादा होती है, तो उस पेशेंट को हमें क्विकली देखना होता है। ठीक है जी। अब यहाँ क्लियर हो गया कि नहीं? दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी हाइपोवोलेमिक शॉक एज वेल एज हीमोरेजिक शॉक। तो जो हीमोरेजिक शॉक है इसके अंदर आप लोगों का WHO क्लासिफिकेशन पूरा हो गया कि नहीं? वो आप लोगों ने लिख लिया कि अगर फ्लूइड लॉस के ऊपर सवाल आ जाए तो आप लोगों ने ये करना है। अगर आप लोगों से कोई ये कहे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोरेजिक शॉक, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? न कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द ब्लड लॉस। इस तरह बताने डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द ब्लड लॉस, कि ब्लड लॉस कितना हुआ है। अगर ब्लड लॉस 15 से कम है नो फ्लूइड इज रिक्वायर्ड, 15 से 30 है आईवी फ्लूइड शुड बी देयर बट नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। तो अगर 30 से 40 है तो फ्लूइड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और पैक्ड आरबीसी देते हैं, क्या देंगे? पैक्ड आरबीसी। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर मिलता है पैक्ड आरबीसी, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आरबीसी ज्यादा होती है। और मिसाल के तौर पे अगर 40 से ज्यादा है तो हम एग्रेसिव फ्लूइड भी देंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। ठीक है जी। तो इतना आप लोगों को आना चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूं ना? ओके, लेके कार्डियोजेनिक शॉक। शाबाश। कि कार्डियोजेनिक शॉक हमारे पास क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें डिस्कस करनी है। हाइपोवोलेमिक क्लियर हो गया कि नहीं? ओके जी। देखें अब आते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ कि व्हाट इज मेंट बाय कार्डियोजेनिक। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। इट इज अ शॉक विच इज रिजल्ट ड्यू टू कार्डियक प्रॉब्लम, मतलब ऐसा शॉक जिसका मसला जो है हार्ट के अंदर हो, तो उसका नाम क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक है। तो लिखे अ शॉक in which
प्रॉब्लम लाइज इन हार्ट, दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। ये सिंपल डेफिनेशन है। और इस तरह भी कह सकते हैं अ शॉक ड्यू टू कार्डियक ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि कार्डियक ओरिजिन पैथोलॉजी इन द हार्ट विद डेवलप शॉक लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक। तो लेके व्हाट आर द काजेस, अभी हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट के अंदर वो कौन सी काज है जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप लोग बताएं, शाबाश ट्राई करें ना। नंबर 1 एक्सीडेंट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दैट इज कॉल्ड एमआई। ओके जी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। चले जी, एक होता है एंजाइना, याद है कि नहीं, और एक एमआई है। इसमें हम एंजाइना कंसिडर नहीं करेंगे। उसमें अगरचे इस्कीमिया है बट स्टिल इतना ब्लड मिल रहा है कि लोकल टिश्यू की डेथ नहीं हो रही है। इट इज विदाउट नेक्रोसिस, बट इस्कीमिया विद नेक्रोसिस इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है जी। फिर डिपेंडिंग अपॉन द आर्टरी इन्वॉल्व्ड, इट मे बी एंटीरियर वॉल एमआई एंड लेटरल वॉल एमआई एंड इंफीरियर वॉल एमआई। बताया था कि नहीं। लेकिन एमआई के अंदर हार्ट के जो सेल होते हैं उसकी डेथ होती है। हार्ट सेल ना रहे तो पंपिंग कैपेसिटी विल बी वीक, फिर इतना ब्लड नहीं निकलेगी कि वो टिश्यू की डिमांड को पूरी करेगी। तो सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन होगी कि नहीं। सो भाई आज के बाद मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक के बाद मरीज को शॉक आना कार्डियोजेनिक शॉक होगा। कौन सा? कार्डियोजेनिक शॉक। नंबर 2 लेके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कौन सी? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशन में क्या होता है? एनीवन कैन गेस? शाबाश। इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सीलेंट। द कार्डियक एक्सीडेंट, जो कार्डियक चेंबर है वेंट्रिकल बियॉन्ड द लिमिट डायलेट हो जाती है, बियॉन्ड द लिमिट रिलैक्स हो जाती है, और मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ द चेंबर इज कॉल्ड कंप्लायंस। उसको क्या कहते हैं? कंप्लायंस। हार्ट कंप्लायंस बढ़ता है तो वो जो दोबारा कंट्रेक्टाइल कैपेबिलिटी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का नाम सुना है कि नहीं? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि विद इन मैक्सिमम रिलैक्सेशन द हार्ट विल फेल मोर, इट विल कंट्रैक्ट मोर, बट विद इन लिमिट। किसके अंदर? लिमिट के अंदर। आप स्प्रिंग ले ले, स्प्रिंग को आप खींचे छोड़े तो मैक्सिमम आएगा वापस के नहीं, बट आप उसकी लिमिट को क्रॉस करें तो स्प्रिंग वापस हो नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज लिमिट में होती है। तो हम कहते हैं कि अगर वो लिमिट हम क्रॉस करें और हार्ट के मसल बियॉन्ड द लिमिट, ब्लड तो ज्यादा आए बट ब्लड निकले ना, तो हाइपोपरफ्यूजन होगी कि नहीं। इसलिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें वेंट्रिकल बड़े मिलेंगे कि छोटे, इसलिए बैलूनिंग ऑफ द चेंबर होता है। बैलूनिंग ऑफ वेंट्रिकल इज अ हॉल मार्क ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें हार्ट रिलैक्सेशन का मसला है कि कंट्रैक्शन का? कंट्रैक्शन का। ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कराता है। क्या कराता है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी इन द पॉपुलेशन। 90% लोगों में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेके कार्डियक टेम्पोनाड। एक्सीलेंट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनाड। ठीक है जी। एनीवन कैन गेस व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनाड? शाबाश। ओके, रेज जेवीपी, मफल हार्ट साउंड एंड हाइपोटेंशन, जिसको हम बैक ट्राइएट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक ट्राइएट। माय क्वेश्चन, और सुने, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड, बट द क्वेश्चन व्हिच आई आस्क व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनाड इटसेल्फ? Okay, fluid around the heart is also pericardial effusion. That is the sudden abrupt increase in the fluid around the heart which compress the heart from outside. That is called a cardiac tamponade. जो pericardial effusion है उसमें भी fluid बढ़ती है, but वो progressively slowly है, और वो इतना fluid नहीं होता कि वो हार्ट को क्या करे? कंप्रेस करे। यहाँ पे fluid अगर इतना सडन राइज हो जाए कि वो हार्ट को बाहर से क्या करे? कंप्रेस करे। मुझे ये बताए शाबाश कि इसमें फॉर एग्जांपल इंक्रीज कार्डियक कंप्रेशन इफेक्ट, ऐसा होता है क्या नहीं कि हार्ट के ऊपर जो कंप्रेशन है वो क्या होगी? ज्यादा। अंदर से कि बाहर से? बाहर से। तो अगर आप किसी को बाहर से स्क्वीज करेंगे तो वो फिर रिलैक्स नहीं होगी। जब वो रिलैक्स नहीं होगी तो ब्लड आउटपुट क्या होगी? कम। तो हाइपोटेंशन होगा कि नहीं? हाइपोटेंशन। अब हार्ट जो है वो स्क्वीज है तो उसकी जो वाल्व है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉपर हो नहीं होगी, तो मफल्ड हार्ट साउंड, क्योंकि S1 S2 क्लोजिंग ऑफ द वाल्व से होती है ना, तो हार्ट साउंड विल बी एबनॉर्मल। अब हार्ट स्क्वीज है, सुपियर भी ना केवल ब्लड नहीं देगी, बैक प्रेशर इंटरनल जुगुलर वेन पे जाएगी, तो उसकी वजह से रेज जुगुलर वीनस प्रेशर, जिसको रेज जेवीपी कहते हैं। ऐसा है कि नहीं? आप लोग आज के क्लास से लिख के ले ले,
NRE1 के अंदर आउट MCQ कार्डियक टेम्पोनाट होता है। क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनाट। यार 4 महीनों की इस सेशन में 150 पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं कहूंगा लिख के ले, और उनमें से 120 110 वही आते हैं, तो एग्जाम तो इधर से पास हो जाते हैं। आज आप लोग घर जाएंगे तो टॉपिक पूरा पढ़ना है, बट उसमें वो पॉइंट अच्छा पढ़े जो मैंने MCQs बताया होता है। यही होता है लर्निंग का तरीका, कि आप लोगों को पता चले कि यार इसमें मेरे काम की चीज कौन सी है जो मुझे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एक मरीज है, उसको MI हुआ है। क्या हुआ है? MI के बाद उसको हमने लोडिंग डोज दी, एंटी प्लेटलेट, थ्रोम्बोलाइटिक, वट एवर, मॉर्फिन, जो कुछ। पेशेंट इज रिकवर, पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द होम, एंड आफ्टर 10 days, after 12 days, after 14 days, patient collapsed in washroom. Patient collapsed in washroom, and when that patient brought to the emergency again, patient was in hypotension. किस में था? लेकिन वो हाइपोटेंशन नहीं बोलेगा, जो रट्टे है वो कहेगा पेशेंट BP shows systolic is 80, diastolic is 40. इसका मतलब यह है कि सिस्टोलिक 120 से क्या है? कम है, 80 पे आया है, और डायस्टोलिक 80 से 40 पे। हाइपोटेंशन हो गया कि नहीं? वो वैल्यू देंगे कि आप समझ भी रहे हो कि हाइपोटेंशन है कि नहीं। तो कहेंगे कि पेशेंट को MI हुआ था, रिकवर होने के बाद 10-12 दिन, डिस्चार्ज होने के बाद फिर वॉशरूम में स्लिप होके लाया, और पेशेंट को क्या था? हाइपोटेंशन। पेशेंट का अस्कल्टेशन पे हार्ट साउंड ऑडिबल नहीं थे, तो क्या है? muffled, and there is a prominent vein in the neck area. Prominent vein in the neck area. Which of the following complication the patient develop? Cardiac tamponade. That is इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो इस तरह कॉपी पेस्ट चीज नहीं बताएंगे, वो इसी को थोड़ा सा आगे पीछे वैल्यूज में पूछेंगे। Prominent vein in the neck in the heart patient is a raised JVP, और इसका मतलब ये है कि कार्डियक टेम्पोनाड इट इज अ पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन। MI के बाद सेकंड वीक में कॉमन कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या है? कार्डियक टेम्पोनाड है। ठीक है जी। तो कार्डियक टेम्पोनाड जो है, इसमें कितनी चीजें होती है? 3। इन तीनों को कलेक्टिवली हम बेक ट्राइएड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेक ट्राइएड। बातें समझ रहे कि नहीं? इंपोर्टेंट वन। इस कंडीशन का नाम है दैट इज कॉल्ड बेक ट्राइएड। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। देखिए सर्जरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आप लोग को पूरे लेक्चर्स में से ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि सर्जरी आप लोग को बहुत कुछ नॉलेज दे रही है अगर आप प्रॉपर पढ़ते हैं। ठीक है ना? दैट इज बेक ट्राइएड। तो आप और से सुने, एग्जाम में आएगा, पेशेंट है, उसको हाइपोटेंशन है, रेज JVP है, और ऑडिबल साउंड उसके नहीं है, बट उस पेशेंट की जो पल्स है ना वो वीक है, और उसकी एक्सट्रीमिटी भी कूल है। तो पेशेंट इज इन द कार्डियोजेनिक शॉक, बट मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी इज कार्डियक टेम्पोनाड, इस तरह कहते हैं। कभी वो कार्डियोजेनिक शॉक का हिस्ट्री देके वो बताएंगे कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, बट इसकी वजह क्या है, वो फिर वजह बताएंगे। अगर उसकी कार्डियक मार्कर रेज है, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T वगैरह, तो फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ निशानी है। अगर उसको बैलूनिंग ऑफ द चेम्बर है, कुछ भी हो सकता है। बट हार्ट प्रॉब्लम के अंदर अगर शॉक होता है तो कार्डियोजेनिक शॉक है। तो लेकिन क्लिनिकल फीचर्स क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लूरल इफ्यूजन, वो तो लंग्स के बाहर होता है। प्लूरल इफ्यूजन अगर मैसिव है, वो मेडियास्टिन शिफ्ट करती है, लेकिन वो इतना पंपिंग को अफेक्ट नहीं करती। वो रेयर काजेज है, कॉमन काज ही। पेरिकार्डियल इफ्यूजन कुछ कंडीशन में होता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर आहिस्ते आहिस्ते फ्लूइड बढ़ते रहे तो वो भी तो हार्ट को डिस्टर्ब कर सकती है। कभी कभार कार्डियक फाइब्रोसिस, क्या होता है? कार्डियक फाइब्रोसिस, हार्ट फेलियर, ये सारे के सारे कार्डियोजेनिक शॉक। मैंने कहा कि हार्ट प्रॉब्लम का वर्ड जब भी आए, चाहे वो हार्ट फेलियर है, चाहे इन तीनों में से कोई है, ये मैंने आप लोगों को जस्ट एक कंसेप्ट सेट करवाया, तो आप लोगों ने कार्डियोजेनिक शॉक ही लिखना है। ठीक है, लेके बताए क्लिनिकल फीचर। भाई हार्ट रेट ज्यादा होगा कि नहीं, तो टेके कार्डिया नंबर 1। फिर क्या होगी? हाइपोटेंशन, सेम सिम्टम आ रहे कि नहीं? हाइपोटेंशन, पल्स इज विल बी ओके, डिजीनेस होगी कि नहीं? बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट वही सिम्टम है। वर्टिगो हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन इसमें जो एडेड है ना, अगर वो MI की वजह से है तो चेस्ट पेन हो सकती है। क्या हो सकती है? चेस्ट पेन हो सकती है, जो एक्चुअल उसकी काज है। लेकिन यहाँ पे ऑन पल्पेशन आप लोग बताएंगे कि ऑन पल्पेशन जो हम मरीज की पल्स देखेंगे, पल्स विल बी वेरी गुड, पल्स विल बी वीक, और फिर एक्सट्रीमिटी वेरी गुड कोल्ड। ठीक है जी, एक्सट्रीमिटी कोल्ड। यार अभी तक
जितनी भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं कॉपी पेस्ट हाइपोवोलेमिक है कि नहीं है, कॉपी पेस्ट वो है, फिर कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि हाइपोवोलेमिक है कि ये कार्डियोजेनिक है, काज से पता चलता है। अगर सेम सिम्टम डायरिया के ऊपर आए हो तो फिर क्या है, हाइपोवोलेमिक है। अगर सेम सिम्टम लॉन्ग बोन की फ्रैक्चर के बाद आए हो तो हाइपोवोलेमिक है। बट सेम सिम्टम अगर वो एमआई के पेशेंट में बताए तो फिर कार्डियोजेनिक है। सो द काज ऑफ द पेशेंट इन दैट प्रॉब्लम मैटर अ लॉट टू डिफरेंशिएट हाइपोवोलेमिक फ्रॉम कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है जी, दोनों की फिजिकल सिम्टम, फिजिकल पल्पेशन, अपीयरेंस, ये सारे क्या है, आपस में सेम होते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी, ठीक है, हम इसकी जनाब फॉर एग्जांपल अगर ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ जाएंगे तो यार इसकी ट्रीटमेंट सेम है कि काज पे डिपेंड करेगा, काज पे, क्योंकि एमआई के अलग ट्रीटमेंट है, मायोपेटिस के अलग ट्रीटमेंट है। सो डिपेंड अपॉन द काज। ठीक है जी, अपॉन द काज। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये इतना इजी नहीं है। डिपेंड अपॉन द काज तो मैंने लिख लिया, बट अगर उसने बताया कि पेशेंट को शॉक है, बट उस शॉक के साथ साथ मरीज को हाइपोटेंशन है, शॉक में तो वैसे भी हाइपोटेंशन होती है, हाँ जी, और मफल हार्ट साउंड और रेस क्या है, जेबीपी, और वो कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो फिर पेरिकार्डियो सिंथेसिस द ट्रीटमेंट। कौन सी, पेरिकार्डियो, क्योंकि जो कार्डियक टेम्पोनाड है उसमें हार्ट के बाहर क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो हमें उस फ्लूइड को निकालना चाहिए। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, हम प्रोसीजर करते हैं नीडल के जरिए, वी हैव टू रिमूव दैट फ्लूइड फ्रॉम द कैविटी टू डीकम्प्रेस द हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या हो चुका है, कंप्रेस, हमें उसकी कंप्रेशन कम करनी है, और उसका तरीका है कि हम हार्ट से बाहर क्या निकालें, फ्लूइड निकालें। तो इस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, वो पेरिकार्डियो सिंथेसिस है। क्या है, पेरिकार्डियो सिंथेसिस, दैट इज इंपोर्टेंट वन, पेरिकार्डियो सिंथेसिस है। ठीक है जी, तोरेको सिंथेसिस है, इसको ना कंफ्यूज ना करें। तोरेको सिंथेसिस हम प्लूरल इफ्यूजन में करते हैं, किस में करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन में, और ये क्या है, दैट इज पेरिकार्डियो सिंथेसिस है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, कार्डियोजेनिक शॉक में भी हार्ट से ब्लड निकले, कम निकलेगी ना, तो किडनी को ज्यादा मिलेगी कि कम, इसमें भी ओलिग्यूरिया होता है। क्या होता है, मैंने सिम्टम सारे वही लिखे हैं ना, एवरी सिम्टम इज सेम लाइक हाइपोवोलेमिक, बट द नेचर ऑफ द काज ऑफ द शॉक इज डिफरेंट। अब मुझे बताएं, कार्डियक टेम्पोनाड की वजह से कौन सा शॉक होता है, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोजेनिक, मिसाल के तौर पे कार्डिक फाइब्रोसिस, कार्डियोजेनिक। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि लीडिंग काज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक वो एमआई है, वो क्या है, एमआई है। पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन में कार्डियोजेनिक शॉक की जो लीडिंग काज है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये एग्जाम में कभी कभार आता है कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज द लीडिंग काज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। यू पीपल शुड नो इट, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन पॉइंट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम्स एज वेल। ठीक है जी, ओके। अब इसमें आप लोग को तो मैंने एक और पॉइंट अगर वैसे ऐड करने नॉलेज के लिए, कि नॉर्मली जो यूरिन है ना, यूरिन, ये किडनी जब फिल्ट्रेशन करती है तो जो चीज हमें चाहिए फिल्टर होने के बाद वो रिअब्सॉर्ब होती है, और जो चीज नहीं चाहिए वो यूरिन में एक्सक्रीट होती है। अब हम हर घंटे के बाद यूरिन करते नहीं है, इट ऑल डिपेंड अपॉन आपकी इनटेक कितनी है, फ्लूइड इनटेक रोजों में कम है, यूरिनेशन कम होती है, ऐसा है कि नहीं। अब सवाल ये है कि नॉर्मली एक हेल्दी किडनी पर हार यूरिन तो बना रही है ना, भले वो हमें 5 घंटे के बाद एक्सक्रीट करना पड़े, बट यूरिन तो वो बना रही है। तो मिनिमम किडनी जो है वो 30 ml पर आर यूरिन बनाना चाहिए उसको, कितना, 30 ml। अगर किसी की यूरिन प्रोडक्शन जो है किडनी के अंदर पर आर कितने से कम हो जाए, 30 ml पर आर से कम हो जाए, उसको ओलिग्यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिग्यूरिया। तो ये भी अगर आप लोग अपने लिख सकते हैं कि when urine amount is less than 30 ml per hour, that is called oliguria या decrease of urination। तो इससे भी आप लोग को हेल्प मिल सकती है कि आप लोग उस तरीके से मेन पॉइंट जो है ये इससे आप लोग को पैदा हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी, मिसाल के तौर पे कार्डियोजेनिक शॉक। बट कार्डियोजेनिक शॉक में कभी कभार हम ब्लंट थेरापी, अब एमआई में हार्ट की कंट्रैक्शन पावर क्या होती है, मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन काज क्या है, माई। तो अगर आपको काज ना भी पता हो, बट आप कोई मेडिसिन बाहर से देना चाहे जो ज्यादातर कार्डियोजेनिक शॉक में इफेक्टिव होता है, तो उसका नाम डूब्यूटामीन है। क्या है, डूब्यूटामीन, ये नाम सुना है क्या नहीं, डूब्यूटामीन इंक्रीज हार्ट कंट्रैक्टिलिटी। ये क्या करता है, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और आप लोग को पता है अगर कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करे, इट विल इंप्रूव द पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट। और हार्ट की अगर पंपिंग आप इंप्रूव करेंगे,
it will increase the delivery of the fluid to the tissues. क्योंकि pumping ज्यादा, cardiac output ज्यादा, तो टिश्यू को जो परफ्यूजन है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी कि नहीं. तो ऐसा ड्रग जो हार्ट की कंट्रेक्टिलिटी बढ़ाए, पंपिंग इंप्रूव करे और डिलीवरी ऑफ द फ्लूइड को टिश्यूज तक इंप्रूव करे, उसका नाम क्या है? डोब्यूटामीन है. दैट इज कॉल्ड डोब्यूटामीन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक है NRE1 के लिए, तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा वो डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट सिर्फ आप लोग को नॉलेज के लिए ये फर्स्ट लाइन है. क्या है? फर्स्ट लाइन. अगर एग्जाम में ये ना हो तो फिर देखे ये मैंने क्या लिखा, व्हाट इज दिस? मिलरिनोन. ये भी एक ड्रग है, ये भी इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी. सो डोब्यूटामीन एंड मिलरिनोन बोथ आर इंक्रीज कार्डियक कंट्रेक्टिलिटी. और दोनों को हम किस में यूज कर सकते हैं? हाँ जी, आंसर इज कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, स्पेशली एज ए इनिशियल ट्रीटमेंट. और इसके बाद कास्ट को देखते हुए हम उसको रूल आउट करेंगे. ठीक है जी. तो आज इतना देख ले, इंशाल्लाह कल हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की तरफ जाएंगे. तो आज का लेक्चर समझ गए कि नहीं? आज के लेक्चर में शॉक आप लोग को बहुत कुछ समझ आया. फिर हमने हाइपोवोलेमिक शॉक, उसमें हिमोरेजिक वर्सेस नॉन हिमोरेजिक और कार्डियोजेनिक. कल इंशाल्लाह टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक विद सम अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इट. ठीक है जी. ओके, लो हाफिज़.